Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And I had recently made a session where I discussed कि अब CLAT के साथ SLAT की preparation भी कैसे कर सकते हैं because SLAT is also right after CLAT and AILET exam this year. तो ये एक नया development है. Symbiosis Law School has also decided that they would also follow the CLAT pattern in terms of conducting their exam. So every year, even in SLAT 24 also, they had conducted the exam in May. But इस बार they have decided कि they will in fact conduct it before the board exams are over in December like CLAT. So I will in this particular session explain everything you need to know about this exam, be it the syllabus, be it the dates, be it the form filling dates, और कुछ भी और चाहिए आपको, the eligibility criteria, the major things that you have to study as a part of the exam. Let's discuss everything. We'll also discuss a basic strategy as we go forward. So the first important thing is, are you eligible? If you have already cleared 12th exam this year or in any of the years, you should have scored minimum 45% as a general category candidate, and if you're an SC or an ST category candidate, you need a minimum of 40% to be eligible, right? If you are in 12th standard currently and looking to write this exam, आपका इनका कोई भी स्टूडेंट हो उसका एडमिशन होगा आफ्टर यू हैव डन इट, ठीक है, आफ्टर आपका 12th का रिजल्ट आ गया है. सो यू डोंट हैव टू वरी कि हमारे हाथ में तो फिलहाल रिजल्ट है नहीं. डोंट वरी, ये पर्टिकुलर एग्जाम में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही एडमिशन होगा. All you have to manage is 45%. कर सकते हैं, not difficult. Let's move on to the pattern of the exam. So pattern is very simple to understand. It has 5 sections. Each section has 12 questions, right? And it is 60 marks, 60 questions, 60 marks, very easy, 60 minutes. 60 मिनट में 60 questions करने. It is like that. 5 sections है, मैं आपको sections की details बता दूंगा. This year, the exam is happening on 13th of December and on 15th of December. Please, if you are willing to write SLAT this year, write both the exams. Do not just write one. आप एक भी लिख सकते हो, that is also a possibility. लेकिन आप एक लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी, because you will understand इस साल क्या हुआ था. इस साल 2 एग्जाम हुए थे फिर से on different dates. The first exam was very difficult, the second exam was very easy. तो जब फर्स्ट एग्जाम डिफिकल्ट रहा तो उससे बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हो पाया इन सिम्बायोसिस पुणे और नोएडा, दैट आर द 2 मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेजेस. और फिर जो आगे के स्टूडेंट्स थे, जो मतलब नेक्स्ट स्लॉट के स्टूडेंट्स थे, उनका बहुत आसानी से हो गया. तो यू डू नॉट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन जहां पे आपने प्रिपेयर भी कर लिया ठीक से, बट देन यू वर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज आपका पेपर ज्यादा डिफिकल्ट आया देन अदर स्टूडेंट्स. तो इसीलिए राइट बोथ दीज स्लॉट्स. फॉर्म्स आर अवेलेबल टिल 22 नवंबर, तो यू शुड फिल द फॉर्म बाय देन. कोशिश करना जल्दी भर दो सो दैट यू कैन गेट योर प्रेफर्ड सेंटर ऑल्सो. ऑनलाइन एग्जाम होता है, इट्स नॉट अ होम प्रॉक्टर्ड एग्जाम. यू हैव टू गो टू द सेंटर एंड राइट इट. इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम. 1 घंटे का एग्जाम है with no negative marking also. The question size is obviously smaller as compared to CLAT, so 60 minutes काफी होते हैं to complete this exam, right? So let's move forward and try to understand किस एग्जाम के 3 अलग अलग पार्ट्स क्या हैं. तो ये टोटल मिला के 100 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें से 60 का होता है ऑनलाइन. की होम प्रॉक्टर्ड मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है. दिस इज एन ऑनलाइन, मतलब आपका एग्जाम सेंटर पे जाके. तो 60 मार्क्स का होता है रिटन टेस्ट, जिसकी मैंने अभी बात करी पिछले 12 नंबर के 5 सेक्शन, जिसको वेटेड एवरेज लेके 50 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है. तो 60 का ही मार्क्स होगा, बाद में आपका जितना भी स्कोर आएगा उसको एवरेज करके 50 में से निकाला जाएगा. फिर 20 मार्क्स का होगा वैट, रिटन एबिलिटी टेस्ट. इसमें दे आस्क यू टू राइट एन एसे और एनी ट्रेंडिंग टॉपिक, ठीक है. इसकी अलग से तैयारी की जाएगी बाद में, बिकॉज ये बाद में होगा, इट विल हैपन इन मे. तो इसकी अलग तैयारी होती है. एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है. दिस पर्सनल इंटरव्यू हैपेंस ऑफ 30 मार्क्स, और इसकी तैयारी भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम आगे जाकर करेंगे, बिकॉज फर्स्ट दीज 2 थिंग्स आर डन एंड देन यू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू. तो ये टोटल मिला के 100 मार्क्स होते हैं. 50 का वेटेड एवरेज निकलेगा इसका रिटर्न एग्जाम का, मतलब जो ऑनलाइन आपका एग्जाम है. 20 फॉर दिस एंड 30 फॉर दिस. तो ये मिला के 100 होता है. जो भी आपका इसमें से स्कोर आता है उस बेसिस पे यू गेट द प्रेफर्ड ब्रांच एंड यू कुड से द प्रेफर्ड सिम्बायोसिस लॉ स्कूल. ये शायद स्क्रीन पे बहुत क्लियर नहीं होगा, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि ये 12 नंबर के 5 सेक्शंस हैं. सिमिलरली 12-12 मार्क्स के, तो 60 का टोटल एग्जाम है. दिस इज द सेम थिंग अगेन, बट मैं आपको एक एक सेक्शन प्रॉपर्ली समझा देता हूं सो दैट इट मेक्स इट इजियर फॉर यू. तो इंग्लिश में आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें आती है जो जनरली हम क्लैट या एलेट के लिए भी पढ़ ही लेते हैं. कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड यूजेस, वोकैब, ग्रामर, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, सिनोनिम, एंटोनिम, है ना, फ्रेजेस, पैराजंबल्स, सिंपल थिंग, नथिंग वेरी टिपिकल, नथिंग वेरी डिफिकल्ट. इंग्लिश इज वेरी मच डूएबल. अगर आप क्लैट एलेट की कर रहे हो, यू डू नॉट इवन हैव टू प्रिपेयर एनीथिंग फॉर इट सेपरेटली. आप सिर्फ मॉक्स कर सकते हो. 1 घंटे का ही मॉक होता है, तो वुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो. देन कम्स लीगल एप्टीट्यूड. लीगल एप्टीट्यूड में लीगल नॉलेज ऑफ बेसिक टर्म, जिसको हम लीगल मैक्सिम्स बोलते हैं, इजी टर्म्स, ठीक है.
you should know basic fundamental rights and important laws. So we are anyway doing it with CLAT, AILET, है ना. It's not that we are not doing it. तो ये भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप बस बेसिक मैक्सिमम थोड़े से याद रखना, तो दैट विल हेल्प यू इमेंसली इन द यू कुड से कैसे रिटेंशन पार्ट में आपको हेल्प करेगा काफी. जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज इज अ मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके. करंट अफेयर्स के लिए यू कैन रेफर टू एनी कंपेंडियम, यू विल एनीवे डू इट फॉर क्लैट. साथ साथ में जीके टुडे एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है. जीके टुडे फॉर हु डू नॉट नो, इट इज अ वेबसाइट, गो ऑन गूगल, जस्ट सर्च इट, यू विल फाइंड डेली 5 MCQs इन जीके टुडे. वो जरूर कर लेना आप लोग रोज, वो काफी आपको हेल्प करेंगे. उसके अलावा सम बेसिक यू कुड से स्टैटिक जीके लाइक यूएन बॉडीज, हिस्ट्री हमें काफी अच्छे से करनी पड़ेगी, तो विल डू इट एज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके, ठीक है. करंट अफेयर्स, एमिनेंट पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ऑनर्स, मेजर डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स एंड व्हाट नॉट. जैसे सर ओलंपिक्स हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जहां पैरालंपिक्स हुआ फॉर एग्जांपल, राइट. तो ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट है जहां पर इंडिया फेयर्ड रियली वेल, है ना. हमने कुछ कुछ जीता, हम कुछ कुछ चीजें हार भी गए, तो वो हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. एंड दैट इज गोइंग टू बी द एंटायर सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन व्हिच इज जनरल नॉलेज. The next category is maths. अब this is something that we all of us hate, but आप CLAT, best part is CLAT के लिए कर रहे हो, है ना. CLAT पे exactly यही सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है. तो जब आप CLAT के लिए चीजें कर रहे हो तो आपका वो CLAT का ही प्रिपरेशन काम आ जाएगा आगे भी SLAT में. So it will not be a lot of effort anyway from your end, ठीक है. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. इनफैक्ट कई बार ये भी देखा गया है कि एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से भी आता है, ठीक है. जरूर मैथ्स इज नॉट द नेम ऑफ द सेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से आता है, तो ये नंबर सिस्टम और ये अलजेब्रा और ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये उसके अंदर भी आ जाती है. तो हम लोग जो एलेट की प्रिपरेशन करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग की, वो एज इट इज ए सेक्शन आता है, एग्जैक्टली मैथ्स की तरह नहीं आता है आजकल, ठीक है. तो यू कैन डू दैट एनालिटिकल रीजनिंग रियली रियली प्रॉपर्ली एंड दैट वुड हेल्प यू. और लॉजिकल रीजनिंग और ये मिक्स आते हैं, तो ठीक है. थोड़ा सा जो आप क्रिटिकल रीजनिंग इसको हम बोलते हैं ना, तो क्रिटिकल रीजनिंग और इसका अलग अलग है. मतलब क्रिटिकल रीजनिंग हमारे जो क्लैट में आता है वो पैसेज आता है, पैसेज के बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन आते हैं, वैसे होता है. यहाँ पर वो काफी डिफरेंट आता है, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे यू कैन गेट एनालॉजी, सीरीज, ब्लड रिलेशंस एंड ऑल, तो ये पार्ट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग हो जाता है ना. और इस वाले सेक्शन में मैथ्स के साथ साथ आपको क्रिटिकल रीजनिंग दे सकते हैं. ये जो 24 मार्क्स का पेपर है जहां पर दोनों में रीजनिंग दे रखा है, लॉजिकल एनालिटिकल, ये इंटरमिक्स होके आता है. इसमें कहीं भी कुछ भी आता है. इसमें कभी कभी क्रिटिकल रीजनिंग में भी मैथ्स घुसा देते हैं, इसमें कभी एनालिटिकल रीजनिंग में मैथ्स घुसा देते हैं, कभी मैथ्स होती ही नहीं है ना. जो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हमको ये सारे टॉपिक्स खत्म करने पड़ेंगे. बट आप अगर सोच के देखो, जो मैंने आपको अभी भी दिखाया है, ये सारे टॉपिक्स आप क्लैट और एलिट अगर दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आप एनीवे खत्म कर रहे हो, है ना. यू आर एनीवे डूइंग ऑल दीज टॉपिक्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ दीज एग्जाम्स. सो इट्स नॉट समथिंग कि कुछ नया आ रहा है जो आपसे हो नहीं पाएगा. इट इज वेरी मच डूएबल. इट जस्ट दैट कि आपको क्लैट और एलिट की दोनों की तैयारी आप कर लेनी चाहिए, बिकॉज अगर आप स्लैट देना चाहते हो तो वो एक बढ़िया आपके लिए कह सकते हो कि रिविजन भी हो जाएगा, एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी. विद इन 15 डेज आप 4 एग्जाम दोगे फिर, ठीक है. 2 स्लैट के एग्जाम्स होते हैं, क्लैट एंड एलिट एज वेल, राइट. अब यहां पर रिटन एबिलिटी टेस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं. दिस इज एन एसे दैट यू हैव टू राइट. अब एसेज हमने स्कूल में भी कई बार लिखे हुए हैं, बट वी आर नॉट वेरी श्योर कि अगर कोई नया ऐसा टॉपिक आ गया विच वी हैव नॉट हर्ड अबाउट, हाउ विल वी राइट अबाउट इट. तो जनरली ऐसा टॉपिक नहीं आता जिसका आपको बिल्कुल सर पैर का आइडिया नहीं होगा. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. सिंपल सा आप देखोगे, करंट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू लॉ, पॉलिटिक्स और सोसाइटी में आता है. तो आप जो क्लैट की तैयारी कर रहे हो ना, उन्हीं में से एक टॉपिक आएगा, ठीक है. उसको लिखना कैसे है ये हम बाद में स्लैट के बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसको प्रिपेयर करने के लिए यू विल हैव रफली 5 months. तो इतना टाइम की जरूरत भी नहीं होती, वो आराम से हम लोग उसमें धीरे धीरे करके विल ट्राई एंड मैनेज थ्रू दैट. देन कम द पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू इज अगेन वेरी पर्सन स्पेसिफिक, है ना. वो इंट्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं. दे आस्क अबाउट व्हाट यू हैव डन इन स्कूल, दे आस्क व्हाई डू यू वांट टू डू लॉ, व्हाई फ्रॉम सिम्बायोसिस लॉ स्कूल. These kinds of questions are asked and a lot of other questions are asked. So I'll discuss that later because अभी पहले हमारा सारा फोकस है जो इसका मेन एग्जाम है वो क्लियर करने में. ये सब चीजें हम आगे डिस्कस कर सकते हैं. तो ये 4 लॉ स्कूल्स हैं इन पुणे, नोएडा, नागपुर एंड हैदराबाद, ठीक है. ये 4 इसी कह सकते हो कि इसी सीक्वेंस में जनरली स्टूडेंट्स इसको चूज करते हैं. तो यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम सीक्वेंस हियर एंड दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स. तो पुणे has 300 seats, 180 in BBA and 120 in BBA, total 300 seats. Same goes for you could say Noida. Noida has 180 and 120, again 300. तो इन दोनों कॉलेजेस में मिला के 160 सीट्स हैं, है ना. और बाकी 480, 120 in each section is in Hyderabad as well as in Nagpur. तो इन मेन कॉलेजेस को you have to aim and that is how you could say you can understand कि इतनी सीट्स है तो आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी to be able to get into these colleges, right?
तो ये हमारी इस साल की मॉक टेस्ट सीरीज है फॉर स्लैट 2025। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड मालपानी वाइल बाइंग इट, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। तो यू कैन डू 1 मॉक एवरी 10 डेज, 1 घंटा लगेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड वेर यू स्टैंड, व्हाट आर द काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू बीन मेकिंग। तो स्लैट के लिए अलग से प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट सीरीज और सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करने जरूरी है, तो वो दोनों मिक्स आपको मिल जाएंगे इसी में। ठीक है, आपको मिक्सचर मिल जाएगा मॉक टेस्ट का और सेक्शनल टेस्ट का, तो दैट विल बी यू कुड से अ वेरी स्मूथ सेलिंग बोर्ड फॉर यू, राइट। सो दैट इज इट अबाउट दिस सेशन। अगर आपको स्लैट से रिलेटेड कोई भी और डाउट है, मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू। आई होप मैं मेजर जो मोटी मोटी चीजें वो कवर कर गया था। कुछ लोग अगर यहाँ पर कंफ्यूज है एनालिटिकल रीजनिंग में और इस वाले डिस्कशन में, तो बस ये बात याद रखना कि बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, हमें एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स कवर करने हैं जो हम स्लैट के लिए सॉरी एलेट के लिए करेंगे, एंड हमको बेसिक जो हमें अजम्पशन कंक्लूजन ये सब चीजें ऑलरेडी आती भी हैं, है ना, वी नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो उनको हमें बस थोड़ा सा कह सकते हो कि छोटे फॉर्मेट में करना है, उसकी छोटी सी प्रैक्टिस करनी है ना। वी ऑल्सो हैव अ सेपरेट एनालिटिकल रीजनिंग कोर्स ऑन आवर एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, आप वो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इफ यू वांट टू यू कुड से प्रिपेयर डिफरेंटली फॉर एनालिटिकल रीजनिंग एंड ऑल, तो you can become a part of 12 minutes to CLAT cohort as well for that, right? So that is it about this session. Thank you so much again for being a part of this. I hope I was able to help for those who were not sure as to how to start, what are certain things to be done, kaisa exam hai, kab hoga. I hope it is clearer now. That's it. Thank you so much guys. Keep working hard and please let us know if you need video on a particular topic. We'll be very happy to provide anything and everything that could assist you. All the best. I'll see you in class.